Hello and welcome to Collecting Practices 3. Thank you all for staying on after the show, and thank you to Nikhil and Neil for having us here post the show. I'm Zulekha Chaudhary from the Al-Qazi Theatre Archives at the Al-Qazi Foundation for the Arts. The Theatre Archives at the Foundation was initiated in 2016. While the Al-Qazi Theatre Archives contains material in the form of theatre photographs and allied documents from post-independence modern theatre in India, centering around the theatre practice of Mr. Ibrahim Al-Qazi and his theatre contemporaries, it believes that a dialogue with contemporary practices allows for a telescopic view of how historical contexts and the legacies of theatre practice have informed different theatre content and form, allowing us to trace chronologies, ideologies, methods, processes as a map that's complex, networked, and hypertextual. Collecting Practices is an umbrella program of the Al-Qazi Theatre Archives, foregrounding the histories, processes, and conceptual formulations of making in performance. Collecting Practices 1 and 2, which were 2016 and 17, focused on documenting the informal and embodied discourses of artistic practice, concentrating on acting methods and ideologies. Collecting Practices 3, Rehearsing the Nation, is a series of 3 talks considering theatre as a lens to read multiple histories. Each talk in the current series is associated with the production at the Black Box Okhla in the next months. The first talk, Culture, History, Theory, was with Anita Cherian and Brahma Prakash, refracting off Nikhil Mehta's performance for the record. Theatre creates spheres where alternatives can be collectively imagined, tried out, discussed, confronted. Theatre creates alternate models of how we might live together, or what kind of society or world we want. Can theatre today unfold its fundamental agonistic vigor, opening spheres of negotiation and debate in which contradictions are not only kept alive, but above all, can they be shaped and articulated? How can theatre engage in contemporary social and political issues without compromising art or politics? What kind of knowledge, which is what I'm really interested in, or impact can art, and in this case theatre, generate that activism and theory cannot alone do? In this sort of broader formulation, today's talk, Theatre and the Citizen by Sudhanva, proposes a relationship between theatre and citizenship in the context of a time of siege. To quote Sudhanva, the very idea of a republic in which the nation belongs equally to all its citizens and each citizen belongs equally to the nation is under threat. This is not an external threat, it's an internal threat from the very people who are supposed to be custodians of the constitutional order that underpins the republic. In this time of internal siege, then what is the citizen to do and what is theatre to do? So although Sudhanva doesn't really need much of an introduction, here's a short one. Sudhanva Deshpande is an actor, director and organizer with Jan Natya Manch and an editor with Leftward Books. He has just finished writing his first book, Halla Bol, The Death and Life of Safdar Hashmi, which will be released in Hindustani and English at Jhandapur, Ghaziabad, the site of Safdar's martyrdom on January 1st, 2020. And he uses the bicycle as his default mode of transport. Thank you so much, Sudhanva, for being here today. Thank you. Thanks, first of all, to the players and to Neil and everyone who made this show possible. Thanks also to all of you. It's late, and I'm sure you need to get back home and so on. So thanks very much, and thanks to the Al-Qazi Foundation and Zulekha for having me here.
हिंदी अंग्रेज़ी थोड़ा अगर मिक्स हो जाए तो चलेगा? ठीक करना चाहिए जी जो अभी हम लोग देखेंगे उसके बाद में तो वही फिर जी जी। तो ऐसा है कि ये जो मसला है सिटीज़नशिप का और थिएटर का और ये टाइम ऑफ सीज का, आज जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, मुझे लगता है हम सब के सब थोड़े से घबराए हुए हैं, सब के सब कुछ हद तक डरे हुए हैं। अगर नाटक के शब्द उधार लिए जाएं तो फटी हुई है। तो अब ऐसे में कोई करे तो क्या करे, और ये जो मसला है ये है क्या, हो क्या रहा है। ये कई साल पहले की बात है, मैं नहीं जानता कि ये कहानी सच है या एपोक्रिफल है, एक बनाई गई कहानी है, लेकिन चाओ एन लाय नाम के चीन के जो है बहुत महान क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनसे किसी ने पूछा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या असर रहा इस दुनिया में। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लगभग 150 साल बाद ये सवाल उनसे पूछा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या असर रहा दुनिया पे। कहने लगे ये सवाल बहुत जल्दी आप पूछ रहे हैं, इट्स टू अर्ली टू टेल, यू नो, वी नीड मोर टाइम टू टेल what the effect of the French Revolution has been on the world. Now, what did the French Revolution really say? It said that the country, the nation, belongs to the people. It doesn't belong to a monarch. राजा और रजवाड़ों का ये देश नहीं है। राजा ने तय किया कि आपको ये मिलेगा, रानी ने तय किया आपको वो मिलेगा वगैरह, नहीं, ऐसे नहीं है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो बाशिंदे हैं इस देश के, ये मुल्क उनका है। और अगर दूसरी तरफ से कहें तो हर कोई जो इस देश में रहता है वो इक्वली इस देश का है, राइट। अब मैं कुछ साल पहले इत्तेफाक से फ़लस्तीन की मुझे बहुत याद आ रही थी इस नाटक को देखते हुए। तो फ़लस्तीन का एक थिएटर ग्रुप है द फ्रीडम थिएटर, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला हमें और नील को भी। तो फ़लस्तीन एक अजीब व गरीब एक चीज़ है। ये एक देश है जो कि देश नहीं है ना, एक जगह है जो कि जगह नहीं है, राइट। ये दुनिया के मानचित्र पे, ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, वेयर इज़ पैलेस्टाइन एंड डज इट इवन एग्जिस्ट। अब अगर हम 1948 की बात करें, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1948 में फ़लस्तीन बना, अब इज़राइल बना, राइट। अब ये इज़राइल जो मुल्क बना और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ, ये एक ही समय पे हुआ, मतलब कुछ महीनों का फासला था केवल इन दोनों में, राइट। और ये करने वाले जो बदमाश थे वो एक ही थे, हैं। तो जिनका राज रहा सारी दुनिया में, जब वो राज ख़त्म होने लगा उस समय पर बदमाशियाँ करके गए, राइट। जहाँ जहाँ गए वहाँ पर जो है डिवीज़न और तकसीम करके गए, है ना, पार्टीशंस करके गए। अब उससे क्या हुआ, आज अगर आप जाएं फ़लस्तीन में, और मुझे एक दो बार ये मौका लगा फ्रीडम थिएटर के चलते वहाँ जाने का, अजीब व गरीब हाल है वहाँ पर। अब आप फ़लस्तीन अगर जाएं तो फ़लस्तीन एक जगह नहीं है। हमें लगता है कि देश है तो एक होगा, है ना, एक कुछ नहीं है। उस देश के अंदर ही इतने बॉर्डर्स हैं और हर जगह आपको जो है चेक पॉइंट्स मिलते हैं। कहीं आप जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते। गाज़ा अगर आप जाना चाहें, जैसा मेरी बड़ी इच्छा थी, सवाल नहीं पैदा होता, आप जा ही नहीं सकते वहाँ। क्यों? क्योंकि गाज़ा इस दुनिया का सबसे बड़ा जेल था। ये 5 अगस्त के बाद हमें कहना पड़ेगा था, है ना। 5 अगस्त से पहले गाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा जेल था। अब अगर हम देखें तो कहना पड़ेगा कि कश्मीर है। दुनिया का सबसे बड़ा जेल जो है वो कश्मीर बन चुका है आज, राइट। उस रूप में नहीं जिस रूप में गाज़ा है, लेकिन कुछ हद तक कुछ एलिमेंट्स उनके जो है मिलते जुलते हैं। अगर आप वेस्ट बैंक की बात करें तो वेस्ट बैंक भी एक चीज़ नहीं है। वेस्ट बैंक के अंदर भी एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी है, उसके अपने जो है ब्यूरोक्रेटिक ये है, यहाँ पर ये, यहाँ पर वो, वगैरह वगैरह।
but 93% of the West Bank is under de facto Israeli control, and the West Bank is supposed to be Palestine. और अब जो कि कल जो ट्रंप ने किया है कि अब सेटलमेंट्स को कह रहे हैं कि नहीं, इसमें इलीगल कुछ नहीं है, ये लीगल है। सेटलमेंट से क्या मतलब? सेटलमेंट से मतलब ये कि जो फ़लस्तीन की ज़मीन है, जो पैलेस्टाइन है, वहाँ पर इजरायली जाते हैं, ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन जो छीन लेते हैं और वहाँ पर अपने घर बनाते हैं, अपने बिजनेसेस बनाते हैं, अपने दफ्तर बनाते हैं, ज़बरदस्ती छीन के, राइट। और इसके चलते what are called facts on the ground are being changed, right? उनका ये मानना है कि हम अगर डेमोग्राफी अगर बदल देते हैं, जनसंख्या का जो संतुलन है उसको अगर बदल देते हैं तो फिर हमारी जीत हो जाएगी, राइट। ये तो बात है ही कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो तो उनके साथ हैं ही, इसराइल के साथ हैं, अमेरिका और अन्य ताकतें, लेकिन उससे सिर्फ काम नहीं चलता है, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैव टू चेंज, राइट। आप अगर देखें कि कश्मीर के साथ क्या हुआ है तो द पैरेलल्स आर एक्चुअली वेरी स्ट्राइकिंग। उस हद तक नहीं, अभी कश्मीर में वो स्थिति नहीं पहुंची है जो कि फ़लस्तीन में है, लेकिन फ़लस्तीन आप याद रखिए कि 70 साल हो चुके हैं, उसे 71 साल हो गए, उस तकसीम को, उस पार्टीशन को 71 साल हो चुके, राइट। एंड नाउ व्हाट इज़ बीइंग सेड inside Israel as well, there's a very large Arab population, huge. और हर बार जब चुनाव होता है तो नेतन्याहू का क्या पूरा हिस्टीरिया क्या होता है, ओ द अरब्स आर गोइंग इन हॉर्ड्स टू वोट। ये जो डरने की बात है, ये इससे भय होता है उनको कि भाई अरब लोग अगर जाकर भीड़ अगर बनाकर वोट कर देंगे तो इससे तो मतलब इससे तो तहलका मच जाएगा भाई। आप सोचिए, एक देश जो कि डेमोक्रेसी है, सपोज टू बी अ डेमोक्रेसी, राइट, इजराइल, या व्हाई शुड देयर बी सच फियर ऑफ पीपल गोइंग टू वोट? दैट फियर इज बिकॉज यू डू नॉट कंसिडर देम इक्वल सिटीजन्स एंड यू डोंट वांट देम टू बी इक्वल सिटीजन्स। That there has been a chipping away of the citizenship right of Arabs even inside Israel. Forget about Palestine. Israeli citizens जो हैं, जिनके पास इजराइल का पासपोर्ट है, ऐसे अरब लोगों के खिलाफ भी, उनके हकों के ऊपर भी पिछले 70-71 साल से इतने हमले हुए हैं कि धीरे 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 करके इट्स ऑल बीन कॉम्प्रोमाइज नाउ ओपनली the prime minister says, oh, they are going to vote. Can you imagine? तो सिटीजनशिप का क्या मतलब रहा है? और आज अगर आप देखें हिंदुस्तान में जो हो रहा है, यहाँ पर ये स्थिति है, कश्मीर की बात हमने की, फिर अभी जब जवान हो रहे थे, जब हम स्कूल कॉलेज में थे, उस ज़माने में ये कल्पना से बाहर बात थी कि एक ऐसे मुद्दे को लेकर के, राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे को लेकर के इतना बवाल हो जाएगा। इट जस्ट सीम्ड द मोस्ट इनक्रेडिबली cockeyed thing to think of. Where was Ram born? What? Seriously? हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो हिस्ट्री हमको जो सिखाई जाती थी उसके ये इतना विपरीत था, 180 डिग्री विपरीत, that it seemed like some weird, completely cock and bull kind, which is exactly what it is. It's a cock and bull story, right? तो इस मुद्दे को लेकर के इतना मोबिलाइजेशन, इतनी नफरत, उस सब के चलते then in 1992 on the 6th of December that so-called structure, विवादित ढांचा उसे कहते थे, the disputed structure, you were not even allowed to call it a masjid. You were not allowed to say that it's the Babri Masjid. In the newspapers of the time, if you read the reports, everybody used to say it's the disputed structure, right? A masjid that had stood there for over 300 years was suddenly a disputed structure.
That was demolished, and what did that do? It changed the facts on the ground. That's exactly what it did. And today, the very people who changed the facts on the ground, who committed an illegal act, who committed a crime, according to what the Supreme Court itself says, that it was an illegal act. What is an illegal act but a crime? तो जिन लोगों ने क्राइम किया उन्हीं को आप कह रहे हैं कि भैया ये लो, आपका हुआ ये, right? Now, what is this if not an assault on the idea of citizenship? At the very base of it is this idea. And this idea that now suddenly in the judgment, if you read the judgment, it's extraordinary how a dispute between two parties, which are legal entities, becomes a dispute between two communities. And the judgment is delivered on that basis. It is said Hindus versus Muslims. Hindus will get this and Muslims, hello, excuse me, Hindus? I was born in a Hindu family. I have a Hindu name. What if 100 of us, 1,000 of us, 10,000 of us were to go and petition and say, on that piece of land, whatever number of acres it is, I'm a Hindu, so I belong to this nation, the Hindu nation, so I'm claiming my piece of land there. If it's done on behalf of the Hindus, then I'm a Hindu. Legally I'm a Hindu, right? In my head I'm not a Hindu. I'm an atheist. But that's not the point. Now, it's extraordinary. Now, what is being done? What's being done is कि citizenship का जो idea है, एक republic का जो idea है, कि हम सब, चाहे हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी हों, जिस भी जात, धर्म, जेंडर के हों, कुछ भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कहीं पे भी रहने वाले हों हम, चाहे कश्मीर के, चाहे नॉर्थ ईस्ट के, चाहे कहीं के भी हम हों, ये देश हम सबका इक्वली है और हम सब समान नागरिक हैं। जो भी इस देश के कानून हैं वो हम सब के लिए समान हैं। ये जो आइडिया है, इस आइडिया के ऊपर इतना बड़ा हमला किया इस जजमेंट ने, क्योंकि हमें ये बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है आज कि आप इक्वल सिटीजन्स नहीं हैं। अगर आपकी मेजॉरिटी है, सो कॉल्ड मेजॉरिटी है, और अगर आपके अंदर ताकत है, आप अगर गुंडे हैं और उस गुंडई में जाकर के अगर आप फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड आप बदल देते हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, कोई मतलब कोई डरने की कोई बात ही नहीं है। आपका है साहब, सब कुछ आपका है। और अब जो कल जो अनाउंसमेंट हुआ है एनआरसी, अब पूरे देश के ऊपर करेंगे। इसका क्या मतलब है? असम के अंदर 20 लाख लोगों को, 19 लाख लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज किया है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। अब ये कह रहे हैं कि पूरे देश पे करेंगे। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट नो मैटर हाउ यू लुक एट इट, what is under assault is the idea of the republic and what constitutes the republic and who constitutes the republic. और नागरिकता, मैं एक नागरिक हूँ, इस मुल्क का, इस देश का मैं नागरिक हूँ। तो नागरिकता का जो आइडिया है उसके ऊपर एक बहुत बहुत बड़ा हमला है। अब आप कहेंगे कि ये आपने पूरा लंबा चौड़ा एक राजनीतिक भाषण तो दे दिया, लेकिन इसका नाटक से क्या लेना देना। तो एक दो छोटी छोटी बातें करके मैं अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ। क्या है कि नाटक एक अजीबोगरीब चीज़ होती है। पीटर ब्रुक की किताब है, आप में से जो नाटक वाले हैं शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, इट्स कॉल्ड द एम्प्टी स्पेस। 1965 या किसी उस समय के आसपास जो लिखी थी उन्होंने, लेक्चर्स थे दरअसल वो। तो उसकी जो शुरुआत है वो बहुत ही गज़ब की शुरुआत है। जो पहले 2-3 उसके वाक्य हैं, कहते हैं कि आई कैन टेक एनी एम्प्टी स्पेस, कोई भी मैं खाली जगह में ले सकता हूँ, और वहाँ पर मुझे सिर्फ ये चाहिए कि एक व्यक्ति उस खाली जगह पे चल के जाता है और एक और व्यक्ति उसे देखता है। इतना अगर होता है तो नाटक हो जाता है।
नाटक होने के लिए इतना काफ़ी है। मतलब ये कि कोई देखने वाले हों, कोई कुछ करने वाले हों और एक खाली जगह हो और ये सब कुछ इकट्ठे हो। फिल्मों में भी ये हो सकता है, लेकिन फिल्मों में इकट्ठे नहीं होता है। हम जो है चार्ली चैपलिन की फिल्में आज देख सकते हैं, हम 100 साल पुरानी फिल्में आज देख सकते हैं जिसमें सब लोग मर चुके होंगे जिन लोगों ने वो फिल्में बनाई। हमें वहाँ होने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है एक जगह पे। थिएटर में आपको एक जगह पे होना पड़ता है, सबको इकट्ठे। इसका मतलब ये है कि अगर बहुत सिंपल लेवल पर कहें तो आप एक समय पर बहुत कम लोगों से बात कर सकते हैं। सिनेमा का इतना बड़ा अट्रैक्शन क्यों रहा है हिस्टोरिकली? लगभग सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पर सिनेमा इंडस्ट्री बनी, सिनेमा हुआ, वहाँ पर जो बड़े लेखक थे, कलाकार थे वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी तादाद में सिनेमा की तरफ गए। क्यों गए वहाँ पर? क्योंकि उनका ये मानना था, जो सही है, कि आप एक फिल्म बनाइए और लाखों करोड़ों लोगों तक आप पहुँच जाते हैं, है ना। एक सलमान खान की फिल्म आती है और एक फिल्म के चलते एक ब्रेसलेट है या पता नहीं क्या है, लाखों बिक जाते हैं, है ना। मतलब है भाई में बात तो है कुछ, हमें चाहे जो भी लगे, लेकिन कुछ तो है। अब यह है कि थिएटर में ऐसा नहीं होता है। थिएटर में तो यही मतलब 30-40 लोग देखते हैं एक टाइम पर, तो फिर हम थिएटर करें तो क्यों करें? मेरा मानना है कि इसका जवाब एक्चुअली नंबर्स का नहीं है, ये जवाब, ये दूसरे तरह का जवाब है। और वो ये है कि हम जब थिएटर करते हैं तो हमारे सामने कुछ हो रहा होता है, असलियत में कुछ हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि हम उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनका पसीना हम महसूस कर सकते हैं। हमें भी उतनी ही गर्मी लग रही होती है, उतनी ही सर्दी लग रही होती है जितनी उन्हें लग रही होती है ना। तो उस तरह से अगर देखें तो नकली नहीं होता, जो कुछ है वो आपके सामने है और ठोस है, आप उसे छू सकते हैं। अब ये जब होता है तो कोई एक लाइव परफॉर्मेंस का, जिसे उसको जादू कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको मिस्टिफाई कर लीजिए, कुछ भी, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस की एक क्वालिटी ये होती है कि वो एक तरह से आपको छूता है जो कि दूसरी चीज़ें अलग तरह से छूती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि सिनेमा आपको नहीं छूता है, सिनेमा बहुत छूता है, और महान सिनेमा या whatever. So I'm not trying to say that theater is the greatest and cinema is not, or dance is not, etc. That's not my point. My point is that there's something specific to live performance. और वो क्या है? मेरा ये मानना है, हमसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आप जो है नुक्कड़ नाटक करते हैं, आप स्ट्रीट थिएटर करते हैं, और स्ट्रीट थिएटर में आपके ऊपर हमले भी होते होंगे कभी कभी। तो हम कहते हैं हाँ हुए, हमले भी हुए हैं, एक से ज़्यादा बार हुए हैं। सबसे जो जाना माना हमला है उसमें हमारे मित्र जो है सफदर हाशमी, उनका कत्ल हो गया, है ना। हम भी थे वहाँ पर, हमने भी देखा क्या हुआ। तो हमले तो होते हैं, उससे पहले भी हुए हैं, उसके बाद भी हुए हैं। इतना बड़ा और इतना भयानक हमला शायद नहीं हुआ, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हमले हुए हैं। कहते हैं आपको डर नहीं लगता? लगता है, डर लगता है, क्यों नहीं लगता? इंसान है भाई, हम कोई भाई थोड़े हैं कि हम ना डरें किसी से। हम डरते हैं, फिर भी जाकर नाटक करते हैं। क्यों करते हैं नाटक? क्योंकि हमें ये समझ में आया, अब मुझे नुक्कड़ नाटक करते हुए 32 साल हो गए, और हमारे ग्रुप को नुक्कड़ नाटक करते हुए उससे भी ज़्यादा हो गए, 41 साल हो गए, 40-45 साल हो गए, पता नहीं कितने साल। और हमारे जैसे और बेशुमार और ग्रुप्स हैं पूरे हिंदुस्तान में जो कि खुले में जाकर नुक्कड़ नाटक करते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ प्ली फॉर स्ट्रीट थिएटर necessarily, I'm just giving that example because that's what I know about, that's what I experience the most. एक बड़ी अजीब बात है, और इस पे पहले मैं हंसता था, फिर मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमला करते हैं आप पे, वो जब सफदर की हत्या हुई उसके बाद में एक जो सवाल बार बार हमसे पूछा गया वो ये था कि नाटक में था क्या ऐसा, क्या था नाटक में ऐसा जिस वजह से आपके ऊपर हमला हो गया। और मैं सोचता था, मैं कहता था जिन्होंने हमला किया उन्होंने तो नाटक देखा नहीं था, उनको कोई मतलब नहीं था नाटक से। और फिर उसके बाद जितनी बार हमले हुए, हर बार मैंने ये देखा कि जब हमला होता है
चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो चाहे ना हो, हमला अलग अलग तरह। हमला जब होता है, जो करते हैं हमला वो नाटक नहीं देखते, और जो नाटक देखते हैं, नाटक देख लेते हैं, वो आपसे बेशक आकर के बहस करें, कभी कभी ऐसे लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो जाते हैं जो कि सभ्य समाज में नहीं होने चाहिए, है ना, लेकिन वो हमला नहीं करते। आपसे कहेंगे आकर के अरे आप तो बड़े ये हैं, आप तो हिंदू विरोधी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, यू नो एट्सेट्रा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दे विल टेल यू। आपकी वो सब कह देंगे, लेकिन एक्चुअली हमला नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाटक देखा होता है, और नाटक जब कोई देखता है व्यक्ति, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर, I don't know how to theorize this, and there's really no theory in my head to this, but I really think of it as a circle. Because I'm talking about street theatre, so it's typically a circle, right? The audience is in a circle around us. Even if it's not a full circle, it's a circular shape that they take. And I like to think of this as a circle of humanity, in a sense, that there's a certain human connection that's made between the players and the spectators that humanizes all of us, not just the players and not just the spectators, but it's a two-way process, and it's a deeply humanizing process. And I feel that what does this do? This act of humanizing all of us, what it does is that because you have seen the play, because you have heard the play, because you have, even if you've hated it, you've engaged with the play for whatever length of time it is, right? You have engaged with ideas that may not align 100% with your own ideas. ऐसे तो कभी नहीं होता है कि कोई नाटक आप देखें और आपको लगे कि 100% जो मुझे लगता है वही कहा गया है इसमें। ऐसा कहाँ होता है? नहीं होता है ऐसा। कुछ ना कुछ तो अलग होता ही है ना, और कुछ नहीं तो किसी की शक्ल ही नहीं अच्छी लगती है आपको, कोई कॉस्ट्यूम ही नहीं ठीक लगता, कुछ तो होता ही है जो कि आपको नहीं ठीक लगता। So in some sense you have engaged with something that is not to your liking, right? Apart from big ideas and, you know, big and small, whatever it is, you have engaged with something that you don't like, but you have engaged with it. And in your own head, even if it's invisible, even if it is not realized by you, even if it is not articulated by you, you've had a dialogue with something you don't like, है ना? तो मुझे बार बार ये लगता है कि नाटक करना क्यों ज़रूरी है, और आज के माहौल में ख़ास तौर पे नाटक करना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाटक हमें ये सिखाता है कि डेमोक्रेसी क्या है, जमहूरियत क्या है, जनवाद क्या है। हम बड़ी बड़ी बातें कर लें, हम कह लें कि हर इलेक्शन में हिंदुस्तान में आप पाएंगे कि जो वोटिंग परसेंटेज है बढ़ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, गांव-गांव में लोग जाकर वोट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, इट्स ग्रेट, इट्स फैंटास्टिक। आई एम नॉट वन हु scoffs at that. I think it's fantastic that more and more people are taking part in the democratic process. It's fantastic. Is the democratic process itself in India the best in the world? No, it's not. It's deeply flawed. Deeply flawed. There are a million things wrong with it. But the fact of people going and voting is great. But is that all there is to democracy? No. Democracy is not just a festival that you have once in 5 years. Democracy is something that you need to build, make, remake. You need to fight about it. You need to contend over it. You need to have arguments about it every single day and in all kinds of spaces. इसलिए पीटर ब्रूक जब बात करते हैं दी एम्प्टी स्पेस की, दरअसल एम्प्टी स्पेस कुछ होता नहीं है। कहीं पे भी आप जाइए, हर स्पेस का अपना एक पॉलिटिक्स होता है और उसकी हिस्ट्री होती है। कुछ वर्ग हैं, कुछ समुदाय हैं, कुछ समाज हैं जो कि उस स्पेस को ओन करते हैं, और कुछ और हैं जो कि उसके ऊपर क्लेम करते हैं। तो ये कॉन्टेस्टेशन चलता रहता है, जो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, जब तक कि झगड़े ना हो, सर फुटअव्वल ना हो तो ठीक है ना।
लेकिन दिस काइंड ऑफ कॉन्टेस्टेशन इज अ नेचुरल थिंग इन सोसाइटी. That's how societies function. And contestation is not to be shied away from. Contestation is good. It's good to have arguments as long as you're not breaking each other's heads. And I believe that theatre trains us to do that, even if we don't see theatre like that. Theatre trains us to have a dialogue with things that we don't fully grasp or fully appreciate or fully like or that don't fully conform to what we believe in. And yet, we don't break each other's heads over it. And in one sense, that to me is the republic that I want. That's the country that I want, where we all will have our differences, that's fine, but where we can have conversations about differences, where we can have debates about differences, where we can have discussions, where we can have arguments, we can have fights, we can have contestations, but where nobody's rights are being compromised. Thank you very much. Thank you. Does anyone have any questions, comments? Okay, I have one. Sure. And we can see if that builds into a conversation. So I was just thinking while you were speaking, if you wanted to talk a little bit, actually there were two things. One was perhaps a more theoretical and maybe abstract question, which is about the relationship between the artistic, how would you propose, or how could you talk about the sort of the linkage or the contradiction between the artistic act and and perhaps just on the face of it, a kind of more activist one, because as you know, this is a very ongoing kind of debate and dialogue. And so I thought maybe you could just respond to that. Yeah. इसका थोड़ा अनुवाद कर लेंगे. Right, my Hindi is, आप कर लेंगे हाँ, शायद ना. जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और हो सकता है कि पूरी तरह मैं आपका सवाल नहीं समझा, लेकिन जुलेखा ये कह रही हैं कि जो हम कला के ज़रिए जो करते हैं और एक्टिविज़म हम जैसे कह सकते हैं, उसके ज़रिए जो करते हैं, उसमें क्या कभी कोई अंतर्विरोध होता है, हो सकता है, और जब हम कला की बात करते हैं तो उसका कलात्मक पक्ष वो क्या होगा और किस हद तक वो आप उसको तवज्जो देंगे या किस हद तक उसको आप उजागर करेंगे. और जब आप एक्टिविज़म कर रहे होते हैं तो उसका कोई कलात्मक पक्ष है या नहीं है. तो दोनों के बारे में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सवाल है कि मैं बहुत माफी चाह रही हूँ यहाँ पे, मैं जी. इंटरप्ट करके मैं Please. इसको एकदम एक और जगह पे ले जा रही हूँ. Please. बहुत माफी. पर मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है इस डायलॉग से कि आज हमने एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम देखा बच्चों का, इतनी मेहनत से इन लोगों ने अपने काम किया, और जो आप बातें जो आज आप कह रहे हैं, जो सिटीजनशिप के आप जो बात कह रहे हैं, जो हम सब लोगों को बहुत इसकी तो परेशानी हो रही है, तो मैं चाहती थी कि अगर हम लोग हमारे बच्चों से ये बातों जिन्होंने 2 महीनों से इस मुद्दे के ऊपर इतनी मेहनत से काम किया है, और हम सब लोग जो आए हैं इनके काम देखने के लिए, मैं तो चाहती थी कि अगर हम लोग इनकी बातें सुने, और यही जो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर हम लोग हमारे बच्चों से ये बात और उनकी क्या समझ बनी है, हमने कुछ देखा है नाटक के तौर से, पर अगर थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी ये मौका हमें कहाँ मिलेगा? बिल्कुल. और शायद आपको सुनने के लिए शायद और भी मौके मिलेंगे. नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल. पता नहीं, अगर मैं माफी. No, absolutely. नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर ये जो प्रश्न है, it doesn't have to be to you, सिर्फ आपके लिए, but we think about it together.
हम एक साथ सोच सकते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज़ आपको क्या लगा, क्योंकि देयर इज़ अ प्रोसेस, आपने भी एक प्रोसेस किया और एक आपको क्या लगा कि जो एक नाटक बनाने में कला भी है, आई मीन देयर इज़ एन एक्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ, आप उसके बारे में सोचते हैं कि एक फॉर्म इसको कहाँ दें, कैसे दें, राइट, एंड देन जो कंटेंट है जो जिसके बारे में है, तो वो जोड़ने का प्रोसेस, और क्या इसमें बहुत अच्छी तरह से मिलता जुलता है, मतलब मेल खाता है या नहीं, आई सपोज। एक सवाल है, तो जैसे हम सर, इज इट, आर यू एडिंग ऑन टू और जस्ट टू adding on to what is said, जी कि activist theatre का जब हम देखते हैं, it appears that at times it tends to take a propagandist kind of stand, which we've seen with a lot of left theatre. और जब उसको कला के रूप में देखना चाहेंगे तो उसके nuances कुछ निकालने की कोशिश करते हैं through the process of imagination, and there are no definitive conclusions that we give. In that space, जब हम थिएटर को एक्टिविज्म के तौर पे लेके चलते हैं, हमें एक स्टैंड के साथ शुरू करते हैं और एक डिफिनेटिव कंक्लूजन ज़्यादातर देते हैं। उसमें हम क्या दूसरे पक्षों को नेगेट करने की स्थिति पैदा करते हैं? I think it's a good, perhaps if you don't mind, maybe क्योंकि आपके ये नाटक में एक्चुअली इसके साथ काफ़ी आपका एंगेजमेंट था ना, एग्जैक्टली जो अमिता ने कहा, तो थोड़ा क्या आप एक्चुअली मे बी सिंपली पुट, आप थोड़ा अपने प्रोसेस के बारे में से शुरू करेंगे थोड़ा सा, मतलब 1, 2, 3 सेंटेंसेस में, फिर हम वहाँ से देखते हैं कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। मतलब जब हमने नाटक बनाना शुरू करा था, तो मतलब जब हमें पहले तो हमें टाइटल ही पता लगता है कि हम किस नाटक पे काम करने वाले हैं। जैसे कि जब हमें पता लगा आई वांट अ कंट्री, तो हमें एक देश चाहिए, तो फिर हमने हमारे अपने अलग ही दिमाग में पहले ही ख्याल बन जाते हैं कि हाँ हमें मतलब नाटक शायद ऐसा होगा, शायद इस तरह बनेगा, आई वांट अ कंट्री मतलब हमें एक देश चाहिए, मतलब क्या क्या होगा उस नाटक में। जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसे बातें हैं जो फिर अच्छा, मतलब ये बातें तो मतलब जो फिर हमें लगने लगा कि ये सब तो हमारे आसपास ही हो रहा है। जनरली हम एक धर्म को लेकर बात कर रहे हैं, किसी को धर्म चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को हॉस्पिटल नहीं चाहिए, किसी को मेडिसिन नहीं चाहिए। उसे लगा कि हॉस्पिटल का आड़ में हमें लूटा जा रहा है। तो आजकल जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी जहाँ भी जो भी कुछ भी बन रहा हो, तो कहीं ना कहीं लोगों का शोषण भी हो रहा है उनके साथ। तो जब हमें नाटक बना रहे थे तो हमें ये फील हो रहा था कि ये तो हमारे साथ हो रहा है, जनरली सबके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है। देश को लेके जैसे कि एनआरसी की बात हुई थी, कि एनआरसी की जब बात आई थी, क्योंकि मैं खुद आसाम से हूँ तो चक्कर करने मेरे काफ़ी सारे, तो फील हुआ कि यार मतलब हमें खुद प्रूफ करना पड़ता है कि हम इंडियंस हैं। सही बात है। तो अजीब लगा, क्योंकि इतने पुराने वो तो शुक्र है कि मतलब हमारे दादा परदादे के डॉक्यूमेंट्स थे, तो इसलिए हमें इतना दिक्कत ही नहीं हुई। बट कई लोग ऐसे जिनके कई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, बिल्कुल कई इतने सारे डॉक्यूमेंट्स 70 साल पुराने, 80 साल पुराने उनके खो गए होंगे, कहीं मिस हो गए होंगे, चूहे कुतर दिए होंगे, कहाँ मिलेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स। तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। फिर वो बेचारे चक्कर काट रहे, गुवाहाटी जाके हाई कोर्ट में वो केस कर रहे, फिर उनका पता नहीं फैसला क्या आएगा कि हाँ तुम इंडिया में बांग्लादेशी हो। फिर ये सोच के दिमाग में ये बात आती है कि चलो ठीक है, एक तरफ से कहते हैं हाँ तुम बांग्लादेशी हो, अगर वो बांग्लादेश वाले कहे कि हाँ सॉरी तुम कौन हो, हम नहीं जानते आपको, करेक्ट, आपके पास क्या प्रूफ होगा आप बांग्लादेशी हो, तो बेचारे फिर कहाँ जाएंगे वो, इंडिया या बांग्लादेश। करेक्ट। तो फिर तो मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा एनआरसी मतलब क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद फिर अफवाह आ रही है कि पूरे इंडिया में बनेगा, इंडिया में एनआरसी हो, मैंने देख क्या होगा। चलो ठीक है, ये तो समझ में आती है कि चलो कुछ बांग्लादेशी आए थे इंडिया में, ये ट्रू है। वो आज़ाद जब बांग्लादेश का जब डिवाइड मतलब पाकिस्तान से आज़ाद करा था आए थे, वो बात सच है। बट अब तुम्हारे कहने का मतलब है कि सारे भारत में बांग्लादेशी है, तो ठीक है, फिर इंडियंस तो है ही नहीं यहाँ पे। करेक्ट। तो और भी ऐसे कई मुद्दे हैं, कश्मीर के मुद्दे हैं, वहाँ भी जो चल रहे कश्मीर में ज़बरन कुछ होता है, कुछ और बात होती है, कुछ और दिखाया जाता है।
तो ये सब जब हम नाटक बना रहे थे तो उसमें कहीं झलक आती है कि हाँ ये सब क्यों हम एक कश्मीर, अगर वहाँ के जो लोग हैं वो अपना देश नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो अपने घर नहीं छोड़ना चाहेंगे, बट वो कभी कभी इस हालत में आ जाते हैं। लाइक मुझे लगता है कभी उनकी फील होता है कि कश्मीर में जितने भी अमीर लोग हैं उनके कहीं ना कहीं इंडिया में अच्छे फ्लैट से घर है, जब उन्हें लगता है कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ आ जाते आ हैं जाते हैं। बचने के लिए कि हम यहाँ सेफ हैं। बट वो इस इंटेंशन से नहीं आ रहे कि हमें यहाँ रहना है, इस इंटेंशन से आ रहे कि कुछ टाइम के लिए आ रहे, ठीक है जब हम मामला ठंडा हो जाएगा फिर हम वापस चले जाएंगे। तो मतलब वो छोड़ना नहीं चाह रहा अपने उस कश्मीर को, बट फिर भी मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है उन्हें। तो हमें भी कहीं ना कहीं इस नाटक में फील आता है कि हाँ जो हम हमारे देश में कुछ दिक्कत चल रही है, सबको अलग अलग शायद प्रॉब्लम है, जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पे उनको शायद कुछ अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है अपनी कंट्री से, तभी वो एक नया देश ढूंढने जा रहे हैं और अपने एक अपना पसंदीदा देश चाहते हैं जहाँ वो फ्रीडम रह सके, जहाँ उसकी जितने भी मनोकामनाएं हैं, जितनी भी उसकी इच्छाएं है वो पूरी कर सके वो। तो उन्हें कुछ वहाँ पर रोक कर नहीं चाहिए उन्हें, तो इसलिए वो अपने एक देश को छोड़ना चाह रहे हैं उस पुराने देश को छोड़ के। तो ये फील काफ़ी होता है, लगता है। जी जब हम ये नाटक बना रहे, मतलब जब हमने बात नाटक में शुरू करी क्या है नाटक करने, तो हमारे अलग अलग मतलब पता लगता था ठीक है कुछ लोग होंगे जो नए देश चाहते होंगे, बट जब हम स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे थे तो हमें लगा था, हमें सीन में हंसी आ रही है, सीरियस मुद्दे पे बात होती है, हमें हंसी आती है, सारे कंफ्यूज लोग हैं क्या बात हुई है, कभी एक जगह सही से नहीं सोच रहे, हमें लगता है पागल है सारे के साथ, अलग प्लानिट्स है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो फिर जब धीरे धीरे और ज़्यादा रीड करते हैं, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा पढ़ते जाओ तो एक वर्ड हमारे माइंड में आते रहेगा, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती रहेगी, तुम पढ़ते गए उसको, जैसे जैसे हमने सीन को फिर स्टेज में करना शुरू किया, फॉर्म यहाँ पर उपलब्ध ब्लैक बॉक्स में, तो चीज़ें और हमारे सामने खुल के आती है, अच्छा ठीक है ये चीज़ें इस तरह से यहाँ जा रही है। और उसके बाद अराउंड वर्ल्ड मतलब काफ़ी चीज़ें और भी होती साथ ही साथ, तो हमें काफ़ी वो ना अपने से लग रहा है कि अच्छा ठीक है जो लोग हैं हम ही हैं, मतलब ये हम इस स्टेज में है कि ये लोग हम ही हैं। एंड जैसा आपने कहा था अभी, वो मुझे काफ़ी मेरे माइंड में भी बार बार हिट करी चीज़ कि आपने कहा था कि जो वोटिंग परसेंटेज है बढ़ रही है, अब वो जो लोकतंत्र में अच्छी चीज़ें लोग वोट दे रहे हैं, बट मेरे को लग रहा है ये काफ़ी कहीं ना डर से रिलेट करते हैं। जैसे ना आसाम में वोटिंग का सिस्टम है, अगर आप वोट नहीं दोगे आप डी वोटर बन जाओगे, तो आपका वोटर इससे नाम काट दिया जाएगा और फिर आपको मतलब केस में चला जाएगा आप वोट नहीं देते। तो जो आप कहते हैं यहाँ से लोग जाते हैं वोट देने, वो मजबूरी में जाते हैं, मुझे लगता है कोई लोकतांत्रिक तरीके से जा रहा है, वो डरा के उनसे वोट लिया जा रहा है। ये तो मुझे लग रहा है मतलब कि कहाँ मतलब लोकतंत्र में ठीक है कि अब तुम किसी को जाने का मन नहीं है। जैसे काफ़ी लोग आसाम से दिल्ली में काफ़ी और भी जगह से हैं, अगर आप वोट नहीं देने जाओगे तो आपको डी वोटर की लिस्ट में डाल दिया जाएगा, फिर आपको उसके लिए प्रूव करना पड़ेगा, अच्छा आप इंडियन ही हो, तो उसके लिए आपका लंबा प्रोसेस केस चलता है, नोटिस आते रहेंगे, आपको भगा देंगे, अरेस्ट कर लेंगे। तो ये इस वजह से शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है। तो ये सही क्या है, मतलब सही है गलत है, आप डर से लोकतांत्रिक बढ़ा रहे हो, मतलब मुझे जब आपने कहा उसी टाइम से माइंड में था कि क्या है। Would you like to answer the question I proposed? Because I have actually a follow-up as a question. राइट। ये मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो ये कला और एक्टिविज़म का जो मामला है ये बहुत पेचीदा मामला होता है और इसका अल्टीमेटली कोई थियोरी में कोई इसका उत्तर नहीं होता है। उसका जो हल है वो प्रैक्टिस में ही निकलता है कि भाई नाटक अगर बन जाए और जानदार नाटक बने, लोगों को पसंद आए तो ठीक है। अगर आप पूरी की पूरी कला उसमें आप जो है उंडेल दीजिए, लेकिन अगर किसी के समझ में नहीं आया वो नाटक तो उसका क्या फ़ायदा फिर। अगर लोग नाटक के दौरान यहाँ वहाँ देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, अगर ये हो रहा है तो फिर उस कला का क्या मतलब। ऑन द अदर साइड ये भी है कि अगर आप एक नाटक को एक हथौड़े की तरह लेकर के सर पे जो है उसको कूटे जा रहे हैं लोगों को, तो उसका भी क्या मतलब। लेकिन इसका कोई इन थियोरी इसका कोई उत्तर नहीं है। अल्टीमेटली नाटक आपको बनाना पड़ता है और नाटक के अंदर कलात्मक जो पैमाने हैं, जो यार्डस्टिक्स हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं और असली ज़िंदगी के अंदर भी आपको ये पूछना पड़ता है कि ये क्या था, ये कला थी, ये नाटक था, या ज़िंदगी थी, एक्टिविज़म था, क्या था ये। मसलन जब
जब इस मणिपुर में जब महिला एक्टिविस्ट्स ने अपने कपड़े उतार करके एक बैनर जो है पकड़ा और कहा कि इंडियन आर्मी कम रेप अस, अब वो मतलब वो ऐसा वाकया था कि दिल दहल गया, है ना, मतलब सांस रुक गई। उसको पहली बार, आई स्टिल रिमेंबर, पहली बार जब मैंने सुना कि ऐसा हुआ है और उसके बाद में तस्वीरें देखी, वीडियो देखे, मेरी दिल की धड़कन रुक गई। अब वो असर, उस तरह का असर किसी नाटक के ज़रिए मेरे ऊपर हुआ हो, मुझे याद नहीं पड़ता। इसका ये मतलब नहीं है कोई अच्छे नाटक नहीं देखे ज़िंदगी में, बहुत अच्छे नाटक देखे, लेकिन दिल की धड़कन रुक जाए, ऐसा असर रोज़ रोज़ नहीं होता है ना। तो वो जो किया उन्होंने, वो क्या था? वो क्या कला थी? वो नाटक था, स्पेक्टिकल था, क्या था? अब उसमें एक परफॉर्मेटिव एलिमेंट तो है ही, क्योंकि वो तो जा रहे हैं, जानबूझ के कपड़े उतार रहे हैं, एक आपके सामने जो आर्मी का जो ये है, जो दफ्तर है, जो भी था वहाँ पर, उसके सामने खड़े हो रहे हैं, परफॉर्म तो कर रहे हैं, जाहिर है इट इज़ अ परफॉर्मेटिव एक्ट, बट इट्स नॉट आर्ट in that sense. Is it activism? Yes, it is activism, but it is very performative, this activism. Right. It's not about, writing petitions and going and filing a case. It's not that kind of activism, right? But it's a very performative activism. तो इसमें नाटकीयता बहुत है, ड्रामेटिक है बड़ा, और ये ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को छूती है। अब ये इस तरह का असर, इस तरह का एफेक्ट, अंग्रेज़ी में जो कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं आपके शरीर के ऊपर उसका असर हो, सिर्फ आपके दिमाग पे नहीं, शरीर पे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसा असर हम अपनी कला में अगर ले आते हैं तो उसको कहेंगे जानदार कला, है ना। वो हर बार नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन ये बात मुझे लगता है कि इसके पैमाने बहुत अलग अलग होते हैं कि क्या चीज़ है जो कि कला कहलाई जाती है, क्या चीज़ है जिसको हम कला मानते हैं, नहीं मानते हैं। ये भी कोई एब्स्ट्रैक्ट या ये कोई न्यूट्रल चीज़ नहीं होती है, इसके पैमाने अलग होते हैं, और ये भी एक कॉन्टेस्टेशन का हिस्सा है। बहुत सी चीज़ें जिसको कि कला कभी माना ही नहीं गया, उसे आज लोग मानते हैं कला। भाई कितने वर्ष, सदियों से महिलाओं ने काम किए हैं, रंगोली बनाई है, अपने घर की दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स किए हैं, एप्लीके का काम किया है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह कितना काम हुआ है सदियों से पूरी दुनिया में। कभी उसको जो है कला का या किसी इस तरह की चीज़ का दर्जा नहीं दिया गया, आज दिया जाता है कई जगहों पर। तो मतलब कला के पैमाने क्या हैं, किस चीज़ को आप कला मानते हैं, किस चीज़ को कला नहीं मानते, ये भी बदलता है। एस्थेटिक थियरीज भी जो है बदलते हैं। मैं वैसे महाराष्ट्र का हूँ, और नामदेव ढसाळ एक पोएट हैं महाराष्ट्र के, उनकी अगर आप कविताएं पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे कि आपको पहले यूँ पकड़ा गया, कई बार आपको जो है थप्पड़ वप्पड़ मारा, फिर आपका सर पकड़ करके एक गंदे नाले के अंदर उसको जो है ये किया गया, फिर निकाला, खून, और ये एक्सपीरियंस होता है उस कविता को पढ़ के। उनकी भाषा इतनी जानदार है, अब वैसी भाषा में कविता लिखी जा सकती है, ये नामदेव ढसाळ से पहले तो किसी ने नहीं सोचा था। और एक ब्राह्मणी ढंग से अगर देखें, जिस तरह की कविता सदियों से होती आ रही है, उसके टोटली अलग जाता है, टोटली विपरीत जाता है ना। लेकिन राइट, एग्जैक्टली इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। जिन लोगों ने कभी वो अनुभव ही नहीं किया है, उनके लिए वो भाषा भी उसका कोई मतलब नहीं है, वो आ ही नहीं सकती उनके पास वो भाषा। अगर ब्राह्मणी आपका अनुभव है तो ब्राह्मणी भाषा में आप कहेंगे ना अपनी बात, लेकिन दलित अगर आप हैं, आप महिला हैं, जो भी है, मतलब
वो अगर आपका अनुभव रहा है तो उस तरह की भाषा भी आपकी निकलेगी, उसी अनुभव से आपकी भाषा भी निकलेगी। अब उस भाषा के ऊपर और उस कविता के ऊपर आप कौन से पैमाने आप लगाएंगे? अगर ब्राह्मणी पैमाने आप लगाएंगे तो वो तो मतलब कला नहीं है, वो तो फेल हो गई कला, राइट? लेकिन मतलब पैमाने भी हमें जो है सोचने पड़ेंगे कि क्या है इसके कला के पैमाने क्या I think that's being, I feel like this is actually quite critical. Ki what's the definition? I mean, what are the yardsticks? And What the are the yardsticks, correct. Neil. I mean, there's one thing that I feel that separates like sort of artistic practice and storytelling in the arts from whether, I mean, not exclusively activism, but journalism, academia. And I like to use one of Suzu's phrases, which is the facts on the ground. And I think that in the arts, and certainly in theatre, as we've experienced making this play, there's the possibility to begin with the facts on the ground, but take it to a place of fantasy, satire, and the imagination. Correct. And I think that art has that liberty, which perhaps activism doesn't always have, because Correct. activism can be considered naive when it goes into that space. Because sadly, hope is a very it's considered a very naive quality of activism, which it shouldn't be, but it is. And I feel like, and this may be coming off my experience working with Agas, who are not necessarily, I would consider them like with children, but they're youth. And I think the thing about youth is, and the youthful imagination, is that you cannot deny it. Right. If somebody picks up a bottle, if a child picks up a bottle and says, "This is not a bottle, this is a spaceship," you cannot deny it. You cannot deny when somebody says, "That's not a ladder, it's a boat, it's a lighthouse, it's a tent," whatever. And I feel like that's critical to me in any time, but certainly in current times, is that theatre can respond to and be irreverent with the facts on the ground in a way that is generative, that as Suzu says, begins a conversation, which I think that, and therefore it does not have that same responsibility to the truth as we call it, because I've been in situations where people say, "Oh well, that would never happen in real life," to something that happens in a play, and Howard Parker says, "But that's exactly why it's a play." Correct. And you cannot deny that it has happened on stage. You cannot deny, in that Peter Brook example, that a man has walked across. You can fight about who the man is and what the motivation for walking across the stage was. And I think that to me, especially working on this play, it's a huge clarifying factor, because questions have been asked about why is there no specific context to this play? Why are kind of contextual markers not present, apart from a few kind of generic ones? To like, how would a 16-year-old have this much knowledge of the world? And to me that seems like we've really reduced the scope of what the imagination should be doing. Correct. I can argue with an activist about the veracity of something that they are doing in their work, but it seems to me fascinating to do it with a theatre, with a play. You may be uncomfortable, as someone says, with something you've seen and argue with it, but you cannot say it's not true. Right. And I think that that's a beautiful thing, that is perhaps the singular one of the singular responsibilities of art, is to actually redefine what truth can be, and not in the way that Israel is doing. Yeah. I should also just like to add to what you are saying, Neil. और वो ये है कि नाटक जब हम देखते हैं तो मैं अभी पिछले हफ्ते भर से मैं इसके बारे में बहुत सोच रहा हूँ, ख़ास तौर पे। क्यों? क्योंकि हम एक जगह हम चलाते हैं शादीपुर में, स्टूडियो सफदर के नाम से, और वहाँ पर अभी हम एक फेस्टिवल कर रहे हैं। अब ये फेस्टिवल जो है उसका क्यूरेशन किया है हमारे आसपास रहने वाले लोगों ने, जिसमें एक हैं रवि भाई साहब, वो चाय बेचते हैं, एक है हमारे नसीम भाई साहब, उनकी रोल्स की दुकान है, एक हैं कमलेश जी, वो MTNL में काम करती थी, अब रिटायर हो गई हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने नाटकों का क्यूरेशन, सिलेक्शन किया है।
तो 50 के आसपास एंट्रीज़ आए थे, उसमें से 7 नाटक इन्होंने सिलेक्ट किए। अब उन्होंने सिलेक्ट किए इसलिए कि उनको पसंद आए नाटक, अच्छे लगे उन्हें नाटक, और वाकई बड़ा अच्छा सिलेक्शन किया है ना। वो जो 50 नाटक आए थे उसमें से वाकई बेहतरीन नाटक उन्होंने फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट किया। अब सवाल यह है कि जब नाटक कर रहे हैं तो ये किसके लिए हो रहे हैं नाटक? तो जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके लिए हो रहे हैं। अब जो आसपास रहने वाले लोग हैं उसमें बच्चे भी हैं। अब हर नाटक बच्चों के लिए सो कॉल्ड मुनासिब नहीं होता है, या हमें लगता है कि ये बच्चों के काम का नहीं है या उन्हें समझ में नहीं आएगा। ये एक बहुत ऑब्वियस एक रिएक्शन होता है हमारा, नहीं नहीं इसमें बच्चों का क्या है। एक क्लाउन एक्ट था, एक जो है पपेट प्ले था, वो तो ठीक है, वो तो बच्चों के लिए है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा सीरियस जो मुद्दे हैं वो बच्चों के लिए क्या है। एंड it's been something I've been thinking about a lot over the last 1 week, literally, because it's a very practical question that we are facing. 100 बच्चे हर रोज़ 4 बजे के शो पे पहुंचते हैं। अब वो 100 बच्चे, उनको पहले हमने कहा भैया तुम्हारे लिए टिकट जो है वो वैसे टिकट है 200 रुपये, बाहर आप में से कोई आए तो आपसे हम लेंगे 200 रुपये, ठीक है। लोकल जो लोग आते हैं उनके लिए 20 रुपये। बच्चों के लिए क्या टिकट? बच्चों के लिए कुछ भी दे दो, जो मन में आए दो। तो बच्चे आते हैं 1 रुपया 2 रुपया लेकर के आते हैं। लेकिन द आइडिया इज़ टू गेट देम टू थिंक अबाउट द फैक्ट दैट यू हैव टू पे फॉर व्हाट यू आर गेटिंग। फ्री में नहीं मिल रहा है तुम्हें, है ना। अब ये 1-1 2-2 रुपये लेकर के जो बच्चे आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे हर रोज़ पहुँचते हैं, भीड़ लगाते हैं, शोर मचाते हैं, वो नाटक देखना चाहते हैं। अब जब वो नाटक देखते हैं और जब निकलते हैं वहाँ से, तो क्या लेकर के निकलते हैं अपने साथ? ये सवाल मैं हर शो के बाद अपने आप से पूछता हूँ कि आज जो नाटक देखा उसमें से क्या इन्होंने लिया होगा। और ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या लिया। नाटक की कहानी समझ में आई, विषय समझ में आया, नहीं आया समझ में। अगर ये नाटक जो आज का जो नाटक है, ये जो है नौजवानों ने नाटक बनाया है और नौजवानों की समझ का नाटक है, उनके समझ में आ जाएगा, सही है। लेकिन एक 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा ये नाटक नहीं समझेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, राइट। हम सब ने देखा है नाटक, लेकिन 6-7 साल का बच्चा भी अगर ये नाटक देखता है या देखती है तो वो क्या देखते हैं इसमें? कुछ तो उनको ऐसा होगा जो कि उनको छुएगा। चाहे वो सीढ़ी है उसके साथ खेल था, चाहे साउंड्स थे, चाहे लाइटिंग थी, चाहे जो भी था, चाहे नौजवानों को स्टेज पे देखना, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है ना। तो क्या हम नाटक को जब देखते हैं तो क्या देखते हैं और क्या हम अपने साथ ले जाते हैं, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ थिएटर, कि सब कुछ समझ में आना चाहिए, ये नहीं है ज़रूरी। तो जैसा मतलब नील ने कहा कि सब कुछ सच होना चाहिए, वो जैसे ज़रूरी नहीं है, वैसे ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। और हमें ये गुमान होता है अपने बारे में, हमें ये गलत फहमी होती है अपने बारे में कि इसलिए कि सफ़ेद बाल हो गए हमको समझ में आता है। अब आज का नाटक जब मैं देख रहा था तो कई बार मैं सोच रहा था यार ये क्या, मुझे नहीं आ रहा है समझ में, शायद पूरी तरह से नहीं आ रहा है समझ में, इस पर सोचना पड़ेगा थोड़ा, यू नो। एंड विच इज़ ग्रेट, विच इज़ वंडरफुल, विच इज़ एग्जैक्टली वॉट थिएटर शुड डू, नो। But I think there are very many different ways in which one can engage with theatre. But the act of a live performance and the undeniability of it, उसको झुटला नहीं सकते आप और कुछ भी कर सकते हैं, उसको झुटला नहीं सकते। वो सच है, वो ठोस है आपके सामने, वो हार्ड मास का है, वो सांस लेता है। ये जो चीज़ होती है नाटक की, उसको नहीं झुटला सकते। एंड देयर इज सम ब्यूटी टू दैट, आई फील। All right. Does anybody have any more comments, questions? आई थिंक लोगों को बहुत भूख लगी होगी अब तक। Anyway, thank you so much then for staying after the performance, and thank you. नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक और बार, मैंने शुरू यहाँ से किया था, एक और बार मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब ने जो नाटक किया उस नाटक के लिए, और आपने जो भी कुछ किया नाटक के ज़रिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसी की वजह से ये बातचीत हो पा रही है, वरना नहीं हो। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.